بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے ایک ایسی عورت کا واقعہ جو بڑی نیک تھی، لیکن جب اس کے دروازے پر ایک فقیر آتا تھا اس کا بچہ مر جاتا تھا۔ پورا واقعہ ضرور سنیے گا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک لڑکی تھی جو بہت ہی نیک، پاکیزہ اور باحیا تھی۔ اپنی ماں باپ کی وہ ایک لوتی اولاد تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو حسن بھی دیا تھا اور اخلاق بھی۔ خوبصورتی کی وجہ سے کئی لوگ اس کے عاشق تھے، لیکن ایک بار ایسا ہوا، ایک آدمی اس کو دیکھ کر اس کے حسن کا دیوانہ ہو گیا۔ وہ طرح طرح سے اس کی قربت چاہتا تھا اور منصوبے بناتا تھا کہ یہ لڑکی مجھے کسی طرح سے مل جائے، لیکن ایسا نہ ہوا اور اس لڑکی کی شادی کسی مسلمان آدمی سے ہو گئی۔ وہ اس کے ساتھ بہت خوش تھی اور یہاں پر وہ ہندو آدمی بے چتاب کھانے لگا کہ یہ مجھے نہ ملی تو یہ کسی کو نہ ملے گی۔ شادی تو اس کی ہو گئی، لیکن میں اس کو خوش نہیں رہنے دوں گا۔ وہ بہت خوش ہوا اور اس نے جنگل میں جا کر چلا کاٹنا شروع کر دیا اور اس کے شوہر اور اس لڑکی پر کالا جادو کر دیا۔ کالا جادو کرنے پر اس کا شوہر اس سے کھچا سا رہنے لگا اور شروع کے 5 سال تو اس کے یہاں تو کوئی بچہ ہی پیدا نہ ہوا۔ ایک بات تو اس کا غم کہ شوہر ہمیشہ اس سے بیزار رہتا تھا اور تو اور اولاد بھی نہیں ہوئی تھی۔ کسی کی کہنے پر اس نے روحانی علاج کروایا تو اس کے یہاں ایک بچی پیدا ہوئی۔ اس بچی کو سب چاہتے تھے، لیکن شوہر اس بچی کے پاس بالکل نہیں جاتا تھا۔ اس بات پر بھی وہ دکھی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی تھی کہ کم سے کم تو رحمت تو آئی ہے نا، اور اب ایک نہ ایک دن باپ کے دل میں بھی محبت پیدا ہو جائے گی۔ بچی تقریباً 8 مہینے کی ہو گئی۔ انہی دنوں میں اللہ والے کے دربار سے ایک فقیر آیا۔ عورت کے گھر گیا، عورت کے ملازم سے کہا اس فقیر کو خیرات دے کر روانہ کرو، لیکن وہ فقیر ضد کرنے لگا کہ گھر کی مالکن سے ملنا چاہتا ہوں، بہت ضروری بات ہے۔ حالانکہ وہ کسی کے سامنے آتی نہیں تھی، باپردہ تھی، لیکن نہ جانے کیوں اس فقیر سے ملنے دروازے تک آ گئی۔ وہ فقیر کہنے لگا بیوی جی کھانے کو روٹی دو، تو عورت نے اسے 3 روٹیاں دیں اور سالن دیا، اور کھانے کے بعد وہ فقیر بولا بیٹی پانی نہیں پلاؤ گی؟ اس عورت نے ملازم سے پیتل کے بڑے گلاس میں پانی منگوایا اور اس فقیر نے گلاس لے کر پانی میں دیکھا اور اس عورت سے کہا پانی میں سانپ ہے۔ وہ حیران رہ گئی۔ فقیر نے کہا بیٹی آپ پر کالا جادو کیا گیا ہے۔ وہ حیران یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں جی مجھ پر کون جادو کرے گا، کون میرا دشمن ہے؟ فقیر نے کہا آپ پر کالا جادو کیا گیا ہے کہ آپ کی کوئی اولاد نہ رہے۔ وہ ہنسنے لگی، ارے بابا جھوٹ بول رہے ہو تمہاری بات کیسے مان لوں؟ میری ایک بیٹی ہے۔ فقیر نے کہا نہ، اندر جا کر دیکھو، میری بات سچ ہے، تمہاری بیٹی سو نہیں رہی، مر چکی ہے۔ وہ بہت پریشان ہوئی، دوڑتے ہوئی اندر بھاگی، جھولے میں پڑی اپنی بیٹی کو دیکھا تو وہ سچ میں مر چکی تھی۔ واپس دروازے پر آئی تو دیکھا فقیر غائب تھا۔ اس نے اپنے نوکروں کو فقیر کے پیچھے دوڑا دیا، لیکن وہ تو غائب ہو چکا تھا۔ سب لوگ حیران تھے کہ بچی آخر اچانک مر کیسے گئی، اور وہ فقیر کون تھا جس نے اس کی موت کی خبر دی۔ لیکن صبر تو کرنا ہی تھا۔ وہ شابیر اور شاکر عورت اپنی بیٹی کی موت پر بس اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے ہی کرتی رہی۔ اس بچی کے تقریباً 1 سال بعد پھر اس کے گھر میں بچی پیدا ہوئی۔ وہ بیٹی پہلے بیٹی سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ عورت اپنی بیٹی کو کسی کے سامنے نہیں لاتی تھی کہ کہیں اس کو کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ ایک بیٹی کھو چکی تھی، دوسری کو کھونا نہیں چاہتی تھی، لیکن جب وہ بچی 2 سال کی ہو گئی تو ایک بار پھر وہی فقیر دروازے پر آ گیا۔ نوکرانی اس فقیر کو صدقہ خیرات دینے لگی۔ اس فقیر کو پہچان کر بھاگتی ہوئی اندر چلی گئی اور مالکن کو بتایا کہ وہی فقیر آیا ہے۔ وہ عورت ڈر گئی۔ اس کو پھر ایک بار شک ہوا کہ کہیں اس کی دوسری بچی نہ مر گئی ہو۔ وہ جلدی سے بھاگ کر بچی کو دیکھا جو آرام سے سو رہی تھی۔ اس نے سکون کا سانس لیا اور نوکرانی سے کہا اس فقیر کو کھانا دے دو۔ ایسا ہی کیا گیا۔ جاتے ہوئے فقیر وہ ملازمہ سے بولا اس گھر کے مالکن پر کالا جادو کیا گیا ہے، اس گھر کی کوئی اولاد زندہ نہ بچے گی۔ کیوں میری بات نہیں مان رہی؟ اپنا علاج کرواؤ، اس سے بول تجھ پر جادو کیا گیا ہے، یہ کبھی بھی صاحب اولاد نہیں ہو سکتی۔ پہلے تو وہ اس بات کو نہیں مان رہی تھی، لیکن جب فقیر نے یہ بات کہی تو وہ زارو قطار رونے لگی
मुलाजमा घबरा गई और जल्दी से भागकर साहब को बुला लाई। घोड़े पर सवार होकर जब अपने घर आया तो जो ही घोड़े से उतरा तो उस घोड़े ने एक अजीब हरकत की और उसके घर के आंगन में एक गड्ढा खोदने लगा। सब हैरानगी से उसे देख रहे थे। आज घोड़े को क्या हो गया है? उस घोड़े ने घर में कब्र क्यों खोदी है? इतनी देर में ही उस औरत की बेटी कदमों से चलते ही सहन की तरफ आई और उससे पहले कि कोई उसे रोकता वो घोड़े के बनाए हुए गड्ढे में जाकर गिर गई। लेकिन जब उसे निकाला गया तो उसकी मौत हो चुकी थी। इस वाक्ये के बाद उस औरत को यकीन आ चुका था कि फकीर ठीक ही कहता था। उसने इस अमल के तोड़ के लिए एक आलिम से राब्ता किया। उस आमिल के इलाज के दौरान ही उसकी फिर से एक बेटी पैदा हुई। अब वो उसका शौहर हर वक्त खौफजदा रहते थे कि कहीं उनकी ये बेटी भी मर न जाए। लेकिन हुआ वही जिसका खौफ था। एक दिन वो औरत अपने शौहर को लेते हुए अपनी बेटी को किसी आमिल के पास लेकर जा रही थी कि रास्ते में अचानक उड़ती हुई कहीं से एक चील आई और उनकी कम सिन बच्ची को उड़ाकर ले गई। वो सब देखते रह गई कि वो चील आसमान में दूर जाकर वो बच्ची को फेंक चुकी थी। जमीन में आकर उस बेटी का पूरा जिस्म बिखर चुका था। माँ बाप तड़प तड़प कर रो रहे थे। आखिर हमारी बेटियों को इस तरह कौन मारने वाला है? कौन दुश्मन है हमारा? वो औरत हर वक्त औलाद के गम में रोती रहती थी। अपनी आंखों के सामने अपनी बच्चियों को मरते हुए देखा था। वही औरत थी जो अब तक बर्दाश्त करते हुए अल्लाह ताला के हुजूर सजदों पर सजदे कर रही थी। या अल्लाह तेरी क्या रिजा है? ये क्या मसलात है? कौन हमारा दुश्मन है? ये राज क्यों नहीं खुलता? आमिल ने ये नहीं बताया था कि काला जादू किसने किया है। उसका शौहर तो पहले ही उससे बेजार था। कम से कम बेटी की वजह से अपने बीवी के करीब आता। लेकिन जब 3 बेटियों की मौत वाकई हो चुकी तो उसके घर वाले उसे अकसाने लगे। बेटा तेरी ये बीवी मनहूस है, उससे कोई भी औलाद पैदा नहीं हो सकती। और उसका शौहर भी दूसरी शादी करने के लिए सोच ही रहा था कि एक दिन उसके घर पर दस्तक हुई। फकीर ने रोटी के लिए सदा दी। ए भाई कोई है जो भूखे फकीर को खाना खिलाए? नौकरानी ने दरवाजा खोला तो वही फकीर सामने मौजूद था। उस औरत को पता चला तो वो दौड़ती हुई दरवाजे पर आई और रोते हुए बोली, अब तो किसको लेने आया है? जब भी तू आता है मेरी औलाद ले जाता है। अब तो मेरे पास तुझको देने के लिए कुछ भी नहीं, गोद खाली है, मेरी मुकद्दर में औलाद नहीं है। औरत रोती जा रही थी और उस फकीर से कहती जा रही थी। उस फकीर ने कहा, अगर तुम मुझ पर यकीन रखती हो तो मुझे घर के अंदर आने दो, मुझे खास तुम्हारे काम के लिए भेजा गया है। औरत ने यकीन कर लिया और उस फकीर को घर के अंदर बुला लिया। फकीर पूरे घर में चक्कर काटने के बाद एक जगह बैठ गया और पानी मांगा। नौकरानी एक बर्तन पर पानी ले आई। फकीर काफी देर तक वजीफा पढ़ता रहा, तस्बीह पढ़ता रहा, जिक्र इलाही करता रहा। फिर उसने कहा, इस बर्तन में देखो, देखो ना क्या नजर आता है। जैसे ही वो औरत उसके अंदर देखती है तो वहां पर काले रंग का एक सांप कुंडली मारे बैठा हुआ था। वो चीख मार कर पीछे हट गई। फकीर ने कहा, बेटी अपनी आंखों से देख लिया ना, आप पर काला जादू किया गया है और उसी जादू के जरिए आपके पेट में काला सांप बिठा दिया गया है जो आपके हर बच्चे को मौत के घाट उतार देता है। लेकिन मेरे बच्चे तो सही सलामत पैदा होते हैं। हाँ यही तो बात है ना कि खुशी आपको मिलती है लेकिन खुशी छीन ली जाती है। इन बच्चों को मारने वाला कोई और नहीं, वही सांप है। और आपको एक बात बताऊं, ये अमल किसने करवाया है? ये अमल एक हिंदू आदमी ने करवाया है। इस बस्ती में रहने वाले बहुत से हिंदुओं में एक हिंदू आपके पीछे पड़ा हुआ है। उसने आपको आपकी शादी से पहले देखा था और देखते ही आपके हुस्न का दीवाना हुआ और आपकी शादी हो गई तो वो तिल मिला गया और उसने एक काले जादू करने वाले आमिल के पास जाकर मंत्र सीखा और जंगल में जाकर 40 दिन तक उसका अमल किया। उसके बाद आप पर और आपके शौहर पर जादू किया गया है। इसी वजह से आपका शौहर जो आपसे इतनी मोहब्बत करने वाला था वो आपसे नफरत करने लगा है। समझ गई मेरी बात? अब मैं क्या करूं? उस आदमी ने ऐसा गंदा सिफले अमल किया है तुम पर और तुम्हारे शौहर पर कि तुम औलाद का सुख नहीं देख पाओगी। अगर चाहती हो तुम्हारी औलाद जिंदा रहे तो तुम्हें एक बहुत बड़ी सख्त मुश्किल से गुजरना पड़ेगा। जब पता चल गया कि कोई दुश्मन है तो वो बाहिम्मत औरत कहने लगी, मैं हर मुश्किल से गुजरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उस गंदे इल्म को यहाँ से हटाना है। फकीर ने कहा, सोच लो, काम बड़ा मुश्किल है। वो कहा, मैं तैयार हूँ।
फकीर ने कहा, औलाद को जिंदा हक करने के लिए खुद तुम्हें उस सांप को अपने पेट से जन्म देना होगा, ताकि आइंदा आने वाले बच्चों की जिंदगी महफूज हो जाए और तुम्हारी औलाद ना मरे। पहले तो वो घबराई थी, क्योंकि वादा कर लिया था कि जो भी होगा मैं हर मुश्किल से गुजरने के लिए तैयार हूँ। मुझे अपने रब पर, उसकी जात पर पूरा यकीन है और वो इस अजीबो गरीब नाकामिले यकीन काम को करने के लिए तैयार हो गई। फकीर ने उसे एक बात ये भी बताई थी कि वो सांप तुम्हारे पेट में मौजूद है, लेकिन बढ़ नहीं रहा। जब तुम उसे अपनी मोहब्बत का इजहार करोगी, तुम कहोगी कि ये मेरा बच्चा है, मैं उसको पैदा करना चाहती हूँ, मैं इसे दुनिया में लाना चाहती हूँ, तो फिर वो तुम्हारी बात को सुनेगा और फिर तुम्हें किसी तरह से उसे अपने पेट से निकालना है। फकीर ने उसको कुछ वजाइब भी बताया था कि ये अमल तुम्हें रात की तन्हाई में करना है, बगैर किसी से बातचीत किए। अब उसने ये बात भी कह दी कि जो भी मेरे पेट के अंदर है, मैं उसको इस दुनिया में लाना चाहती हूँ, मैं उसकी माँ हूँ। सांप ने उसकी ये बात सुन ली, बस वो बढ़ना शुरू हो गया। वहाँ पर उसने एक दाई से भी बात कर ली थी कि मेरे पेट से जो बच्चा पैदा होगा वो कोई इंसानी बच्चा पैदा नहीं होगा, वो एक सांप होगा। डरना मत, सांप जिंदा में नहीं बल्कि मुर्दा हालत में बाहर आया। और माँ की करनी कि उसने उसके साथ साथ एक जिंदा लड़की को भी पैदा किया, जिसका रंग बिल्कुल नीला था। वो लड़का अपनी पैदाइश के बाद कुछ ही देर के बाद मर गया। दुख तो बहुत हुआ कि एक माँ को 3 बेटियां एक बेटा खोना पड़ा। इस वाक़ये के ठीक 1 साल बाद अल्लाह ताला ने उस औरत को फिर एक बेटा दिया। काले इल्म का असर अब खत्म हो चुका था। एक दिन वही फकीर उसके घर पर फिर आया। औरत भागती हुई फिर उस फकीर के पास आई। बाबा, क्या बात है? कोई ऐसी खबर तो सुनाने नहीं आई हो जो मैं फिर से टूट जाऊं? अब तो मेरे बेटे भी हो गए हैं और अल्लाह का शुक्र सेहतमंद भी है और अब तक ठीक है। मैं रोज उसकी लंबे जिंदगी की दुआएं मांगती हूँ। फकीर ने कहा, बेटी, मैं इस बार कोई बुरी खबर नहीं सुना रहा हूँ, बल्कि मैं तो खुशखबरी देने आया हूँ। बल्कि वो हिंदू आदमी जिसने तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे शोहर के ऊपर और तुम्हारे बच्चे के ऊपर काला जादू किया था, वो आज भी जंगल में जादू कर रहा था कि तभी एक काले नाग ने उसको डस लिया और वो मर चुका है। अल्लाह ताला तुम पर करम करे, तुम्हारे दुश्मन हलाक हो गए। अब अल्लाह ताला तुम्हें औलाद दिया है, इनको तुम्हारा वारिस बनाएगा। इस तरह वो नेक पाकीज़ा औरत अल्लाह के करम से अपने बेटों के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगी। दोस्तों, काला जादू बिल्कुल सच्ची बात है, ये कुरान से साबित है। इसलिए हम सबको हर तरह से अपनी और अपने घर वालों की हिफाजत करते रहना चाहिए।